भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ದೊಡ್ಡನಲ್ಲ. ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರು. ಸತ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ. आदाब नाजरीन, A1 TV उर्दू में आप सभी का खैर मकदम है। अगर आप नए हैं तो रायचूर का वाहिद उर्दू टीवी चैनल A1 TV को आप सब्सक्राइब करिए और उर्दू को फरोग दीजिए। नाजरीन, आज की अहम खबर, अनवर बादशाह की रायचूर शहर में आमद। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के नवमुंतखबा चेयरमैन अनवर बादशाह का रायचूर शहर में शानदार इस्तकबाल किया गया और अनवर बादशाह ने वक्फ की कई जायदादों का मुआयना भी किया। खासकर कल सुबह स्टेशन रोड रंग मंदिर के अखब में हजरत शेख शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा और मीडिया में उसको किस तरह से पेश किया गया, जबकि वो मामला कुछ और था और उसको किसी और तरीके से पेश किया गया। आइए नाजरीन, उसी पर कांग्रेस पार्टी के कायद असलम पाशा और दरगाह मस्जिद के जिम्मेदारान क्या कहते हैं, उसी को A1 TV के जरिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। नाजरीन, इसके बाद A1 TV के जरिए एक और वीडियो हम आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें कर्नाटका स्टेट बोर्ड के वक्फ चेयरमैन अनवर बादशाह ने रायचूर शहर में किन किन जगहों का दौरा किया और उन्होंने क्या क्या कहा, इसको भी A1 TV के जरिए एक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाएगी। ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ದೊಡ್ಡನಲ್ಲ. ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷ ಇದೆ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಇದಾರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮಸೀದಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಮದ್ರಸಾಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದರ್ಗಾಗಳಿದ್ದಾವೆ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದಾವೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ. ನಮ್ಮ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರು ಜಮೀರ್ ಸಾಹೇಬರವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸುತ್ತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಒತ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರವು ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತವೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತೆರವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ನಾವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಬಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರು ನಾವು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅನ್ವರ್ ಮಾಲ್ಪಾಡಿ ಅವರು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CBI ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ. ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ, ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು 6,000 ಪುಟ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರ ಹೆಸರು. ಸತ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ತನಿಖೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರ ಸರ್, CM ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡನಲ್ಲ. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಯಚೂರು ನಗರಸಭೆಗೂ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತುವರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳು ಆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗುತ್ತಾ ನಾಶಮಾನ 100% ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಿಲ್ಲ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಆದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್ ಒತ್ತುವರಿ? ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನಮ್ದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 7ನಲ್ಲಿ 1170 ಅಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ತನಿಖೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಾಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ರಾಯಚೂರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಫೈಲ್ ವಿವರವನ್ನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. अस्सलाम वालेकुम। कल रायचूर शहर में
जनाब अनवर बादशाह साहब हमारे स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन, एक टीपी था उनका गवर्नमेंट प्रोग्राम, वो रायचूर शहर में आए थे। तो हम लोग रायचूर शहर के जितने भी माइनॉरिटी लीडर्स हैं उनको तहे दिल से इस्तेमाल करके उन्होंने कई दरगाह, कई हमारे इदारे, वक्फ हॉस्पिटल्स, मस्जिद विजिट किए और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा उनका एक दौरा था। उस दरमियान में कल सुबह 10:30-11 बजे प्रेस वालों ने उनसे कुछ सवालात किए। आज हमने सुबह चंद पेपरों में, कोई 2 पेपर में हमने देखा कि वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम अनवर साहब लिया, ऐसा कुछ पढ़े। ये बिल्कुल गलत है। क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वक्फ चेयरमैन के साथ मैं बिल्कुल उनके साथ में था। प्रेस वाले पहली बात तो उनको ये कन्फ्यूजन था, वो मैं क्लियर करता हूँ। उन्होंने अनवर बादशाह साहब को गलती से, जो रामनगर के एमएलए है जनाब इकबाल साहब, उन्होंने इकबाल साहब समझे जिसको अनवर भाई को, तो इसलिए उन्होंने बार बार डीसीएम सीएम ये सवाल कर रहे थे। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया अनवर भाई, मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, एमएलसी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वक्फ का चेयरमैन हूँ। आप सियासत के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में या बड़े लीडरों के बारे में अगर सवाल करना रहे तो मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, आप सवाल मत कीजिए। मैं सिर्फ वक्फ चेयरमैन हूँ, वक्फ के तहत आप बात कीजिए। तो वो लोगों को जब कन्फ्यूजन क्लियर हो गया, मैं उनका चेहरा देख रहा था, उनके आप सामने थे क्या? जब बिल्कुल मैं बाजू था तो उन्होंने क्लियर हो गए। शायद उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, ऐसा नहीं है बोल के भी नहीं बोल रहा, कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। तो बाद में उन्होंने वक्फ के बारे में बात की। तो जब दरमियान में ये बात आई कि अनवर मलपाड़ ने जो पिछले अनवर मलपाड़ कमीशन के बारे में, इस कमीशन के बारे में जो रिपोर्ट दिए थे उसमें कईयों के नाम है। हाँ तो ठीक है, वो मसला कोर्ट में है, जब तक कोर्ट के मसले में हम कुछ बात नहीं कर सकते। ये क्लियर कर दिया अनवर साहब ने, जो वक्फ के चेयरमैन थे। वो बिल्कुल कांग्रेस के जो लीडरों की अनुमान पर रिपोर्ट है जी, वो बीजेपी के थे। तो उन्होंने साफ खुला लफ्ज से कह दिया कि वो बीजेपी के थे, तो फिर जाहिर नाम दे दिए है, वो कोई नाम का कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो मसला कोर्ट में है उसके बाद बात करेंगे। ये क्लियरिफिकेशन प्रेस वालों को। अनवर बादशाह साहब किस लीडर का नाम लिए? किसी लीडर का नाम नहीं लिए, बिल्कुल हम साथ में है, वो किसी लीडर का नाम नहीं लिए। अरे यार, वो स्टेट लीडर के, डिस्ट्रिक्ट लीडर के नाम ही नहीं ले सके तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम कैसे ले सकते? उतने बड़े आदमी लीडर। अगर हम किसी लीडर का किसी आपको वीडियो, आप पूरे रायचूर शहर में नहीं, चाहे तो स्टेट से कोई भी अगर वीडियो चाहता तो मेरा नंबर लीजिए 9448551543। वहाँ जितना भी वीडियो हुआ वो मैं वीडियो देता हूँ। कहीं भी साहब का नाम नहीं लिए। साहब तो हमारे बहुत बड़े लीडर है, उनका नाम ही नहीं लिए। उन्होंने इतना कहा कि वो बीजेपी अनवर मलपाड़ उन्होंने किया है। ठीक है, देखेंगे, वो कोर्ट में है मसला, हम उसके बारे में। और मैं उतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, ये भी क्लियरिफिकेशन। आपके हिसाब से यहाँ मीडिया वालों से कंफ्यूज हुआ, बस मीडिया वालों से कंफ्यूज हुआ। मैं ऑलरेडी प्रेस वालों के जो प्रेस में आया, 2 पेपर में आया, उनसे भी बात किया। बोला उनको कನ್ನಡ में ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ। यस, बिल्कुल कन्फ्यूजन, बिल्कुल कन्फ्यूजन। तो यानी आपके जो अनवर बादशाह साहब आए थे वो किसी लीडर का नाम नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल साथ में हूँ। जितना अच्छी तरह कन्नड़ा मैं जानता हूँ, जितना अच्छी तरह कन्नड़ा अनवर भाई जानते हैं, वो सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल किसी लीडर का नाम नहीं है, चाहे वो कांग्रेस का हो या दूसरा हो, किसी लीडर का नाम नहीं है। मैं आज ये हमारे A1 टीवी के जानिब से मैं क्लियरिफिकेशन देना चाह रहा हूँ, इसलिए कि कहीं भी लीडर का नाम नहीं आया। कोई भी इस चीज़ में बिल्कुल गलत है। शुक्रिया, थैंक यू। अनवर बादशाह साहब वक्फ चेयरमैन तशरीफ़ लाए थे, तो मैं मस्जिद यासिर का सदर, मेरा कुछ काम था, मैं उनको मिलने के लिए गया था। तो उन्होंने जब तक शेख अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के पास गए थे, वो टाइगर स्कूल के पास है, वहाँ पर कई मशाकिन और सैयदुल सादात थे। वो तमाम लोग दरगाह में आने के बाद ज़ियारत करे। अनवर बादशाह साहब भी दरगाह को गुल्ला और चादर चढ़ाई, ज़ियारत हुई। होने के बाद हम बाहर निकलने के बाद कुछ मीडिया वालों ने साहब को सवाल किया, आप साहब क्या बोले? तो साहब बोले, मैं वक्फ चेयरमैन हूँ, बेंगलोर से आया हूँ। मैं क़ब्रिस्तान और दरगाह और है ना मस्जिदों के प्रॉपर्टी को देखने, वक्फ प्रॉपर्टी को देखने के लिए आया हूँ, ये मेरा काम है बोलकर साहब को बोले। और हमारे को सुनने में आया, कल मैं मौजूद ही था पीछे, वहाँ पर हमारे असलम साहब भी थे, मैं भी था और बहुत सारे लोग थे। तो मीडिया वाले जो बोले हैं कि बड़े बड़े लीडरों का नाम लिए, वो ये सब गलत है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिए। उन्होंने ये बोले कि भाई मैं वक्फ चेयरमैन हूँ, मुझे औकाफ के बारे में क्या पूछना चाहते हैं आप पूछो। मैं दरगाह
और कब्रस्तान मस्जिदों का सर्वे करने के लिए आया हूँ, मैं वो काम के लिए आया हूँ। इसके अलावा मुझे दूसरा नहीं आता। और जो मीडिया में जो आया है वो नाम लिए उनका इनका बोल के सरासर गलत है, बेबुनियाद है। हम वहाँ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। कल जनाब अनवर बादशाह साहब स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन रायचूर शहर के दौरे के लिए आए थे। वहाँ पे हज़रत शेख अली शहीद रहमतुल्लाह दरगाह के पास जो एक स्टेटमेंट दिए उसमें उन्होंने क्लियर बोल रहा हूँ, मैं भी मौजूद था, मेरे दरगाह के ताल्लुक से बात करने के लिए गया था। किसी लीडर का नाम नहीं लिए, क्या भी नहीं। ये लोग थोड़े मीडिया वाले कन्फ्यूजन में किसी और लीडर के नाम से इनको समझ गए, ऐसा कुछ पूछे, मगर उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नाम नहीं लिए। इसकी गवाही मैं भी देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं मौजूद था। ये जनाब अनवर बादशाह साहब जो एक हौसला अफजाई काम कर रहे हैं, वक्फ ज़मीनों की, वक्फ जायदादों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, उनके हौसले बुलंद करना छोड़ के ऐसा गैर ज़रूरी स्टेटमेंट आए तो पस्त होते। इसलिए मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि वो अपने ये काम बखूबी जारी रखे और इससे भी ज़्यादा काम करे, इतना बोलते। एम्पायर और हमराज की क्या ख़ास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड